السلام علیکم۔ آج کی اس کلاس میں ہم کلاس 10 کا سبق نمبر 9 مکمل کریں گے۔ یہ ایک لوک کہانی ہے، آئیے اس کو دیکھتے ہیں۔ لوک کہانی، یہ سبق اسپینی زبان کی ایک لوک کہانی پر مشتمل ہے، یعنی اسپینی زبان کی کہانی ہے جس کا اردو میں ترجمہ کیا گیا ہے۔ لوک کہانی کسی معاشرے کے افراد میں سنی سنائی جانے والی ایسی کہانی ہوتی ہے جس میں فطرت، انسان اور ماحول کی دوسری تفصیلات کے متعلق روایتوں کو اخلاقی تعلیم و تربیت کی خاطر کہانی کے روپ میں بیان کیا جاتا ہے۔ یعنی کہ لوک کہانی کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ لوک کہانی کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ وہ کہانی جو معاشرے میں سنی سنائی جاتی ہے اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ معاشرے کی اصلاح کرنا ہوتا ہے۔ معاشرے میں اخلاقی تعلیم و تربیت کے لیے کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ اس کہانی میں خدا پر ایک کسان کے پختہ یقین کو اس ڈھنگ سے پیش کیا گیا ہے کہ اس کے باہمی ہمدردی اور انسانی دوستی کی تصویر کشی ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ جو کہانی ہے، آپ کا سبق جو ہے خدا کا نام ایک خط، اس میں کیا ہے؟ ایک کسان کے خدا پر بہت ہی زیادہ گہرا، بہت ہی پختہ یقین کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ یعنی کہ جو کسان ہے وہ ایک ایسا کردار ہے جس سے آپ کو ہمدردی ہو جائے گی، جس سے آپ کا من دوستی کرنے کا ہوگا۔ آپ کے سبق میں ایک لوک کہانی ہے، اس کا نام کیا ہے؟ خدا کے نام خط۔ اس وادی کا اکلوتا مکان ایک چھوٹی سی چٹان کے اوپر بنا ہوا تھا۔ وہاں کھڑے ہو کر بہتے ہوئے دریا، مٹر اور چنے کے کھیتوں کو بخوبی دیکھا جا سکتا تھا۔ یہ کھیت بڑی عمدہ فصل دیتے تھے اور انہیں جس چیز کی بے حد ضرورت تھی وہ بارش تھی۔ یعنی کہ وہ جو کسان تھا، اس کا کسان کا گھر کہاں تھا؟ ایک وادی میں ایک اکلوتا مکان تھا جو چھوٹی سی چٹان کے اوپر بنا تھا، اور وہاں کھڑے ہو کر کیا دکھائی دیتا تھا؟ وہاں کھڑے ہو کر بہتے ہوئے دریا دکھائی دیتے تھے، اور مٹر اور چنے کے کھیتوں کو بہت آسانی سے دیکھا جا سکتا تھا۔ اور کھیتوں کو سب سے زیادہ ضرورت کس چیز کی تھی؟ بارش کی تھی۔ یعنی بارش سے کیا ہوگا؟ فصل اچھی ہوگی، فصل سے اچھی ہونے سے کیا ہوگا؟ آمد آئے گی، آمد سے کیا ہوگا؟ کسانوں کو پیسہ ملے گا۔ لینچو اپنی زمین اور کھیتوں کے چپے چپے سے واقف تھا۔ تو اس کہانی کے کردار کا نام کیا ہے؟ لینچو۔ لینچو کون ہے؟ ایک کسان ہے۔ وہ آج صبح سے بار بار آسمان دیکھے جا رہا تھا۔ اس نے تشویشناک لہجے میں کیا کہا؟ بی بی، میرا قیاس ہے کہ آج بارش ہوگی۔ قیاس یعنی اندازہ۔ کسان نے کیا کہا کہ میرا اندازہ کیا ہے؟ آج بارش ہوگی۔ اب جو کسان کی بیوی ہے، بی بی نے جو اس وقت کھانا تیار کر رہی تھی، یہ سن کر جواب دیا، ہاں، آج کسی بھی وقت بارش ہو سکتی ہے اگر رب چاہے تو۔ یعنی اس کی بیوی نے ساتھ ہی بتا دیا کہ اللہ اگر چاہے تبھی بارش ہو سکتی ہے، اگر اللہ نہ چاہے تو بارش نہیں ہو سکتی۔ یعنی اللہ پر اپنا اعتماد دکھا دیا اپنے۔ اس وقت بڑی عمر کے لڑکے کھیتوں میں کام کر رہے تھے اور چھوٹے بچے مکان کے نزدیک کھیل رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد بی بی نے انہیں آواز دی، آ جاؤ، سب کھانا تیار ہے۔ جب سب مل کر کھانا کھا رہے تھے تو جیسا کہ لینچو نے قیاس آرائی کی تھی، یعنی کہ جیسا لینچو نے اندازہ لگایا تھا، بارش ہونے لگی۔ بارش کے شفاف قطرے زمین پر برس رہے تھے اور آسمان پر شمال کی جانب سے بادلوں کے پہاڑ چلے آ رہے تھے۔ شفاف کہتے ہیں بالکل پاک صاف، یعنی بالکل صاف ستھرے، جن کے آر پار دیکھا جا سکتے، ایسے قطرے بارش کے برس رہے تھے زمین پر، اور بادلوں کے پہاڑ چلے آ رہے تھے۔ ہوا بھی تیز تھی۔ لینچو باہر کھیتوں میں نکل گیا۔ اس کا مقصد اس کے سوا کچھ اور نہ تھا کہ بارش سے پیدا ہونے والی ترنگ کو اپنے تن من میں رواں دواں دیکھے۔ یعنی کہ اس کو بہت زیادہ خوشی تھی بارش کی۔ جب وہ گھر میں واپس آیا تو جذباتی اور جوشیلی آواز میں بولا، یعنی بہت ہی جذباتی ہو چکا تھا اور بہت ہی زیادہ خوش تھا، تو بہت ہی جوشیلی آواز میں کیا بولا، جو کچھ اس وقت آسمان سے برس رہا ہے وہ بارش کے قطرے نہیں بلکہ سکے ہیں، بڑے اور چھوٹے۔ یعنی کہ اس نے بارش کے قطروں کو کیا کہا؟ سکے بتایا۔ پھر اس نے بڑے اطمینان سے یہ بھی کہا کہ گلے کے کھیت اور مٹر کے نئے نئے کھلے ہوئے پھول بارش کی چادریں اوڑھ کر بہت خوش ہیں۔ ابھی اس نے یہ کہا ہی تھا کہ ایک بارگی تندو تیز آندھی اڑی، پھر بارش کے ساتھ ژالہ باری ہونے لگی۔ یعنی کہ اتنی تیز ہوا آئی کہ بارش کے ساتھ کیا ہونے لگی؟ بارش کے ساتھ ژالہ باری، یعنی کہ اولے بھی برسنے لگے۔ اولے واقعی چاندی کے گول گول ڈلوں کے مشابہ تھے، یعنی جیسے تھے، یعنی بہت بڑے بڑے اولے تھے۔ بچوں نے یہ دیکھا تو لپک کر اندر سے باہر آ گئے اور انہیں چننے میں جٹ گئے۔ بچے خوش تھے، لیکن ان کا باپ فکر مند ہو کر خود سے کہنے لگا، اب تو معاملہ بگڑنے لگا ہے، لیکن پھر بھی مجھے امید ہے کہ سب کچھ بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ جب بارش ہو رہی تھی تب تک تو بہت ٹھیک تھا، لیکن بارش کے ساتھ ہی کیا ہونے لگا؟ تیز و تند ہوا چلنے لگی، آندھی آنے لگی۔ آندھی کے بعد آنے کے بعد کیا ہوا؟ ژالہ باری ہونے لگی، یعنی بڑے بڑے اولے گرنے لگے۔ اولے جب گر رہے تھے تو اولے گرنے سے بچے تو بہت خوش تھے، لیکن بچوں کا باپ یعنی کہ جو لینچو تھا وہ خوش نہیں تھا۔ لینچو خوش کیوں نہیں تھا؟ کیونکہ اس نے سوچا کہ اگر بارش کے ساتھ ژالہ باری یعنی اولے بھی برسنے لگیں گے تو کیا ہوگا؟ فصل برباد ہو جائے گی، فصل خراب ہو جائے گی۔ اللہ پر لینچو کو پکا یقین تھا۔ لینچو نے کیا کہا؟ لینچو نے کہا کہ مجھے تو اب بھی امید ہے کہ بہت جلد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن سب کچھ ٹھیک نہیں ہوا اور بہت دیر تک اولے گرتے رہے۔ زمین ایسی سفید ہو گئی جیسے
उस पर नमक की चादर बिछा दी गई हो। दरख्तों पर एक पत्ता भी न रहा, गल्ले के खेतों का सत्यानाश हो गया, मटर की बेलें और पौधों के ताज़ा फूल टूटकर बिखर गए। लैंशो परेशान हो गया। उसने अपने बेटों से क्या कहा, अगर इन खेतों पर टिड्डी दिल ने हमला किया होता तो भी हमारे पास उससे ज्यादा बच रहा होता, लेकिन ज़ाला बारी ने तो हमें मुफलिस और खल्लाश कर दिया, यानी गरीब बना दिया है बिल्कुल। अब हमारे पास ना गल्ला है और ना सब्जी है। इस साल तो हमें फाके पर फाके करने होंगे, यानी भूखा रहना होगा। वो तमाम लोग जो वादी के इस इकलौते मकान में रहते थे, वो अपने दिलों में एक नाकाबिले शिकस्त उम्मीद लिए बैठे थे और एक अनदेखी कुव्वत पर तकिया किए हुए थे। यानी कि जो किसान यानी कि जो लैंशो के घर में रहने वाले लोग थे, वो किस पर, अल्लाह ताला पर बहुत ही ज़्यादा उम्मीद लगाए बैठे थे। वो अपने आप से कह रहा था, दिल छोटा मत करो, हिम्मत मत हारो। कौन कह रहा था? लैंशो कह रहा था। इसमें कोई शक नहीं कि सब कुछ तबाह हो गया, लेकिन याद रखो कि भूख से कोई मरता नहीं। लैंशो ने किससे कही बात? लैंशो ने खुद से कहा कि हिम्मत करो, दिल छोटा मत करो, बेशक सब कुछ तबाह हो गया, लेकिन क्या है, याद रखो कि भूख से कोई मरता नहीं। यानी कि वो अल्लाह पर अपना एतमाद दिखा रहा था कि अल्लाह पर उसको कितना एतमाद है, कितना भरोसा है। लैंशो के तमाम ख्यालात अपनी आखिरी उम्मीद यानी आसमान इमदाद के गिर्द घूमते रहे। उसको बचपन ही से ये तालीम दी गई थी कि सबका पालनहार बड़ा रहीम और करीम है, यानी अल्लाह कैसा है, बहुत ही रहीम है और बहुत ही करीम है। इंसान के दिल की गहराइयों की बात जानता है। कौन जानता है? अल्लाह ताला। लैंशो अपने खेतों में बेल की तरह काम करता था, वो कुछ लिखना पढ़ना भी जानता था। आइंदा इतवार तक उसने अपने आप को इस बात का पक्का यकीन दिला दिया कि एक अनदेखी मुहाफिज हस्ती मौजूद है, यानी कि अल्लाह ताला है जो सबके दिलों की बात जानता है, सबकी परेशानियों को देखता है। इस यकीन के बाद उसने खुदा के नाम एक खत लिखना शुरू किया। अब लैंशो ने खुदा के नाम खत लिखना शुरू किया और उसकी शुरुआत कैसे की? या रब्बी, यानी ए मेरे अल्लाह, अगर तूने मेरी मदद नहीं की तो मैं और मेरा कुंबा इस साल फाकों का शिकार हो जाएंगे। इस वक्त 100 रुपयों की अशद ज़रूरत है, यानी सख्त ज़रूरत है कि मैं खेतों की हालत दोबारा ठीक कर सकूं और इनमें बुआई कर सकूं और नई फसल की कटाई तक जिंदा रह सकूं, क्योंकि ज़ाला बारी ने सारी फसल बर्बाद कर दी है। लिफाफे पर पते की जगह उसने ये अल्फाज लिखे, ये खत खुदा को मिले। उसके बाद उसने लिफाफे को बंद किया और गमगीन दिल के साथ शहर की तरफ चल दिया। डाक खाने पहुँचकर उसने टिकट खरीदे, लिफाफे पर चिपकाए और लिफाफा सुपुर्दे डाक कर दिया, यानी डाक में डाल दिया। उस डाक खाने के एक डाकी ने जो खतों की तकसीम के साथ उनकी छटाई का काम किया करता था, हंसते हुए ये लिफाफा अपने अफसर को पेश किया। अपनी सारी मुलाजमत के दौरान उसने उस पते पर कभी डाक नहीं पहुंचाई थी। पोस्ट मास्टर एक खुश मिजाज और दर्दमंद दिल का आदमी था। वो भी इस लिफाफे को देखकर बेअख्तियार हंसने लगा, लेकिन कहकहों के दरमियान वो यकबारगी खामोश और संजीदा हो गया। उसने लिफाफा मेज पर रख दिया और कहने लगा, यानी जो अफसर था, अफसर ने क्या किया, जब खत को देखा तो खत को देखकर वो हंसने लगा, लेकिन साथ ही क्या हुआ, वो एक खामोश हो गया और संजीदा हो गया। वो इतना ज्यादा सोच में पड़ गया। वो सोचने लगा, क्या किसी को अल्लाह ताला पर इतना भी यकीन हो सकता है, इतना पक्का एतमाद भी हो सकता है। तो लिफाफे को मेज पर रखकर वो पोस्ट मास्टर क्या कहने लगा, वो अफसर क्या कहने लगा, वो कहने लगा, वाह वाह क्या पख्ता ईमान है, काश मुझे भी ऐसा ईमान नसीब होता। यानी कि उस लैंशो के ईमान की तारीफ कर लगा कि लैंशो का ईमान कितना मजबूत है और उसको अल्लाह ताला पर कितना एतमाद है, कितना भरोसा है, और मैं भी ऐसे ही यकीन का हामिल होता। क्या बात लिखने वाले की, जिसने एक पख्ता उम्मीद पर खुदा उसे खतों किताबत शुरू कर दी। वाह वाह, यानी कि पोस्ट मास्टर उसकी तारीफ करते हुए कह रहा है कि क्या तरीका है इसका लिखने का, क्या बात करने का तरीका है कि इसने खुदा के नाम ही खत लिखना शुरू कर दिया। फिर उसने सोचा, ऐसे पख्ता ईमान और उम्मीद को पास करना अच्छा नहीं। उसने अपने मातहतों के सामने ये तजवीज़ पेश की। मातहत यानी कि जो उसके नीचे काम करते हैं, उनसे क्या कहा, उनसे ये तजवीज़ पेश की, खत पढ़ा जाए और उसका जवाब भी दिया जाए, कि वो नहीं चाहता था कि लैंशो का जो खुदा पर एतमाद है वो टूटे। इसलिए उसने क्या कहा कि खत को पढ़ा जाए और उसका जवाब भी दिया जाए। जब लिफाफा चाक किया और खत पढ़ा, तब अंदाजा हुआ कि इस खत का जवाब कागज, कलम, दवात, रोशनाई, दर्दमंदी और नेकदिली से कुछ ज्यादा का तलबगार है। उसने अपने मातहतों को सारी बात बताकर चंदे की दरख्वास्त की और खुद भी एक अच्छी खासी रकम पेश की। कितने रुपए की जरूरत थी? 100 रुपये की ज़रूरत थी। तो उसने क्या कहा, अपने मातहतों से कहा कि चंदा जमा करने की ज़रूरत है हमें, और उसके बाद क्या करना है, लैंशो को पहुंचाने हैं। इसके अमले ने इस कार्य खैर यानी इस नेक काम में हस्ब तौफीक हाथ बटाया, यानी कि जो लोग थे सबने क्या करा, इस नेकी के काम में हाथ बटाया। लैंशो ने जिस कदर रकम तलब की थी इतनी तो जमा ना हो सकी, फिर भी उसके नसफ से कुछ ज्यादा का इंतजाम हो गया। नसफ यानी आधा, यानी आधे से कुछ ज्यादा का इंतजाम, यानी कि 100 रुपये की जरूरत थी, 100 रुपये से आधा कितना हुआ, 50 से कुछ ज्यादा, यानी कि 70 रुपये तक का इंतजाम हो गया था।
पोस्ट मास्टर ने तमाम नोट एक लिफाफे में बंद किए, फिर उस पर लेंचो का पता तहरीर किया यानी लिखवाया और एक चिट्ठी लिखकर लिफाफे में रख दी और जिस पर दस्तखत के तौर पर सिर्फ इतना लिखा, खुदा। अगले इतवार को फिर लेंचो डाक खाने में आया और पूछा कि क्या इसके नाम से कोई खत आया है। पोस्ट मास्टर ने लेंचो का खत उसके हवाले किया और उस कार्य खैर अंजाम देने पर उससे किसी तरह की खुशी महसूस की। उसके बाद वो दरवाजे की तरह से लेंचो की कैफियत देखने लगा। उसने देखा नोट पाकर लेंचो को कोई हैरत नहीं हुई। उसको तो जैसे उसका पख्ता यकीन था कि रकम तो उसको मिलने ही वाली है। उसको अल्लाह पर इतना यकीन था, उसको पता था कि अगर मैं अल्लाह ताला से इतने रुपए तलब करूंगा तो मुझे हर हाल में हर सूरत में इतनी रकम तो मिल ही जानी है, तो इसलिए उसे किसी बात की हैरत तक नहीं हुई। फिर जब उसने रकम गिन ली तो बिगड़ गया और बड़बड़ाने लगा, खुदा ने तो हरगिज़ ऐसी गलती नहीं की होगी और ना उसके पास इस चीज की कमी है जो मैंने उससे खत के जरिए तलब की थी, वो तो उससे भी ज्यादा दे सकता है। फिर कुछ सोचकर डाक खाने की खिड़की पर गया, कागज कलम तलब किया, फिर खत लिखने बैठ गया। उसकी पेशानी पर उभरने वाली लकीरें बता रही थी कि वो जुमले बनाने के लिए अपने जहन को पूरी तरह टटोल रहा है। उसी कैफियत में उसने खत बामुश्किल पूरा किया और अच्छी तरह देखभाल के उसे लिफाफे में बंद किया, फिर टिकट खरीदा और उसको एक जोरदार मुक्के के साथ बंद कर दिया। फिर जैसे ही खत लेटर बक्स में गिरा तो डाकिर ने फौरन ही उसे निकाल लिया। खत पढ़ा गया, उसमें लिखा था, या रब्बी, जो रकम मैंने तलब की थी उसमें से मुझे सिर्फ 70 रुपए ही मिले हैं, बाकी रकम भी फौरन इरसाल करें यानी फौरन भेजें। मुझे इसकी शदीद तरीन ज़रूरत है, लेकिन अब बाकी रकम डाक के जरिए हरगिज़ न भेजें क्योंकि इस डाक खाने के मुलाजमीन बेईमान और बददयानत हैं। यानी कि खुदा पर लेंचो को इतना ज़्यादा भरोसा था। लेंचो ने क्या कहा कि अल्लाह ताला तूने तो 100 रुपये ही भिजवाए होंगे, लेकिन ये जो मुलाजमीन हैं, यहाँ के जो काम करने वाले हैं लेटर बक्स के, डाक खाने के, वो कैसे हैं, बददयानत हैं और बेईमान हैं। ज़रूर उन्होंने ही ये पैसे निकाल लिए होंगे। अब अल्लाह ताला से क्या कहा कि जो बाकी रकम है उसको भी भेज दें, लेकिन क्या करें, डाक खाने के जरिए ना भेजें क्योंकि ये जो डाक खाने के मुलाजमीन है वो बेईमान हैं। तो यहीं पर क्या होती है, लोग कहानी ख़त्म हो जाती है। तो इस कहानी से क्या सबक मिलता है? इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि ये कहानी हमें ईमानदारी का सबक देती है और साथ साथ किसानों की ज़िंदगी की मुश्किलात के बारे में बताती है कि किसानों की ज़िंदगी में किस तरह की तकलीफ़ें आती हैं, वो किस तरह की तकलीफ़ों से गुजरते हैं, किस तरह से फसल की देखभाल करते हैं और किस तरह से फसल बर्बाद हो जाने पर वो किस तरह परेशान हो जाते हैं। और एक अल्लाह ताला पर मुकम्मल एतबार होना चाहिए। तो हमें भी क्या करना चाहिए, हर मुश्किलात में क्या करना चाहिए, अल्लाह ताला पर मुकम्मल एतबार करना चाहिए, चाहे कितनी बड़ी मुश्किल क्यों ना आ जाए। अपना जो एतबार है अल्लाह ताला से कभी भी ख़त्म नहीं करना चाहिए और सारे मामलात को अल्लाह ताला पर छोड़ देना चाहिए। आइए इसके सवाल जवाब मुकम्मल कर लेते हैं। सवाल नंबर 1 है, लेंचो ने बीबी से क्या कयास आराई की? तो इसका जवाब होगा, लेंचो ने बीबी से कहा कि मेरा कयास है कि आज बारिश होगी। सवाल नंबर 2, लेंचो बारिश में खेतों की तरफ क्यों गया? तो इसका जवाब होगा, लेंचो बारिश में खेतों की तरफ इसलिए गया कि वो बारिश से लुत्फ अंदोज हुआ और बारिश से पैदा होने वाली तरंग को अपने तन मन में रवा दवा देखे। सवाल नंबर 3, ज़ाला बारी से क्या नुकसानात हुए? तो इसका जवाब होगा, ज़ाला बारी से दरख्तों पर एक पत्ता भी न रहा, गल्ले के खेतों का सत्यानाश हो गया, मटर की बेलें और पौधों के ताज़ा फूल भी टूट गए। सवाल नंबर 4, लेंचो ने खुदा के नाम खत में क्या लिखा? तो इसका जवाब होगा, लेंचो ने खुदा के नाम खत में लिखा, या रब्बी, अगर तूने मेरी मदद नहीं की तो मेरा कुंबा इस साल फाकों का शिकार हो जाएंगे। इस वक्त 100 रुपयों की ज़रूरत है ताकि मैं खेतों की हालत दोबारा ठीक कर सकूं और नई फसल की कटाई तक जिंदा भी रह सकूं। ज़ाला बारी ने सारी फसल तबाह कर दी है। सवाल नंबर 5 है, लेंचो ने लिफाफे पर क्या पता लिखा? तो इसका जवाब होगा, लेंचो ने लिफाफे पर पता लिखा, ये खत खुदा को मिले। सवाल नंबर 6, पोस्ट मास्टर ने लेंचो का खत पढ़ने के बाद क्या किया? तो इसका जवाब होगा, पोस्ट मास्टर लेंचो का खत पढ़कर बहुत मुतासिर हुआ। उसने डाक खाने के मुलाजमीन से चंदा किया और खुद भी कुछ रकम मिलाकर लिफाफे में लेंचो के नाम एक चिट्ठी के साथ 70 रुपए रख दिए और लेंचो का पता तहरीर कर दिया। सवाल नंबर 7 है, लेंचो ने पहले खत का जवाब मिलने के बाद दूसरे खत में खुदा को क्या लिखा? तो इसका जवाब होगा, लेंचो ने दूसरे खत में लिखा कि या रब्बी, जो रकम मैंने तलब की थी उसमें से मुझे सिर्फ 70 रुपए मिले हैं, बाकी रकम भी फौरन इरसाल करें। मुझे इस शदीद तरीन ज़रूरत है, लेकिन बाकी रकम डाक के जरिए हरगिज़